Good morning, students. I am your teacher from Guru Ramdas College of Pharmacy, Mlot. हमारा आज का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स 2। आज का जो टॉपिक है पार्ट 4 है वो है स्टेरॉइड डोसेज फॉर्म का। दैट्स आर नॉन एक्वस व्हीकल फॉर पेरेंटल्स। उससे पहले हमने थर्ड पार्ट में एक्वस व्हीकल के बारे में स्टडी की थी जिसमें वाटर फॉर इंजेक्शन था। अब नॉन एक्वस व्हीकल है जिसमें सबसे पहला एग्जांपल आती है ऑयल्स की। There are few drugs which are not soluble in water to any extent but are soluble in oil। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो वाटर में सोलूबल नहीं रहती तो उनको हम ऑयल में सोलूबल बना सकते हैं। मैनी फिक्स्ड ऑयल लाइक सोयाबीन, पीनट, cotton seed, corn, olive, sesame and persic are used as solvents for such drugs. For example, steroids, some vitamins and hormones. Oils as parental vehicle must meet all official standards. Oils of mineral origins, hydrocarbons can't be used since they are not be metabolized by the body. नेक्स्ट आ जाता है आपका अल्कोहल्स। अल्कोहल में क्या है कि अल्कोहल इज़ वेरी रेयरली चूजन एज ए व्हीकल for the parentals when other vehicles are failed to use. The reason its own physiological activity and the pain and the tissue damage it causes after administration. There is no official preparation in which it is allowed used as a vehicle, but in injection of digoxin and ergotamine, small volume of alcohol is added to facilitate solution to the active ingredient. Third one is propylene glycol. Propylene glycol is used as a vehicle for parentals. It is relatively non-toxic, causes severe irritation on subcutaneous and intramuscular injection, thus should not be given by these routes unless an anesthetic such as benzyl alcohol is added to it. Another one is प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स क्या है कि हमने प्रेपरेशन को बनाने के लिए कुछ ऐसे सब्सटेंसेस ऐड करने होते हैं जो उनकी क्वालिटी को, उनकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं। इनको प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। द चॉइस ऑफ प्रिजर्वेटिव्स टू प्रिजर्व द प्रेपरेशन फ्रॉम द माइक्रोबियल ग्रोथ डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ द रूट्स थ्रू विच पेरेंटल प्रेपरेशन इज टू बी इंट्रोड्यूस्ड and the vehicle to the preparation. Various preservatives are recommended on the basis the enlisted as follow। तो कुछ preservatives ऐसे हैं जो पेरेंटल प्रोडक्ट्स के प्रेपरेशन में यूज़ होते हैं, जैसे कि फिनोल हो गया 0.5% वेट बाई वॉल्यूम, क्रिसोल 0.3% वेट बाई वॉल्यूम, क्लोरोक्रिसोल 0.1% वेट बाई वॉल्यूम। तो ये एग्जाम्पल है इसकी। These preservatives are used in multiple dose injection, sterilized by any official method, and in single dose injection, sterilized by filtration. They are unnecessary in the preparation prepared by heating with the bactericide, and those containing medicament has bactericidal activity. Some parentals do not require any preservatives because of its untoward physiologic activity. Thus, their use is prohibited in intracardiac, intraarterial, intrathecal, intracisternal and पेरिडोनल इंजेक्शन। तो प्रिजर्वेटिव जैसे आपको पता है कि बहुत सारी प्रेपरेशन में प्रिजर्व करने के लिए प्रेपरेशन को यूज़ होते हैं, बट पेरेंटल केस में बहुत सारे पेरेंटल प्रोडक्ट्स ऐसे रहते हैं जिनमें प्रिजर्वेटिव्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
क्योंकि ये ऑनसेट इनका एक्शन रहता है, बनाने के बाद तुरंत इसको लगा सकते हैं हम। कुछ केस ऐसे जैसे इंट्राकार्डिक हो गया, इंट्रा आर्टियल हो गया, इंट्रासिस्टर्नल, और इन केसेस इन प्रेपरेशन में हमको प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दे आर आल्सो प्रोहिबिटेड इन इंट्रावेनस इंजेक्शन हैविंग वॉल्यूम मोर देन 15 ml. Therefore, the choice of preservatives should be such that they should be effective in their small amount. To the render the preparation preserved for its shelf life period and should not have any toxic effects on patient. Next, they should not disturb the stability of the formulation after showing its compatibility with any other component to the formula and the container. Next one is solubilizing agents. तो प्रेपरेशन में और क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं। दीज आर यूज टू इंक्रीज द सोलूबिलिटी ऑफ ड्रग्स विच आर स्लाइटली सोलूबल इन वाटर। द सोलूबिलिटी ऑफ ड्रग इज increased by using surface active agents like twins and polysorbates or by using co-solvents। तो आपकी प्रेपरेशन को सोलूबल बनाने के लिए हम सोलूबलाइजिंग एजेंट ऐड करते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल है ट्वीन्स की। नेक्स्ट है स्टेबलाइज़र। तो प्रेपरेशन को और स्टेबल बनाने के लिए हमको स्टेबलाइजर्स भी ऐड करने पड़ते हैं। these drugs are form of solution are more liable to deteriorate due to oxidation and hydrolysis। हाइड्रोलाइसिस और ऑक्सीडेशन को प्रेपरेशन जो आपकी बनी है उसको ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलाइसिस से बचाने के लिए हमको स्टेबलाइजर ऐड करने पड़ते हैं, ताकि आपकी जो प्रेपरेशन है वो ज़्यादा स्टेबल रहे। ऑक्सीडेशन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके अंदर हम एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यूरिया स्कॉर्बिक एसिड हो गया, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, और प्रोडक्ट इज सील्ड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो और हाइड्रोलाइसिस हम कैसे बचा सकते हैं, उसकी नॉन एक्वस व्हीकल और बाय एडजस्टिंग द पीएच ऑफ द प्रेपरेशन। नेक्स्ट वन इज थर्ड वन इज बफरिंग एजेंट्स दैट the degradation of the preparation, which is due to change in pH, can be prevented by adding the suitable buffer to maintain the desired pH. For example, citric acid and sodium citrate, acetic acid and sodium acetate। तो आपकी जो प्रेपरेशन है वो उसकी pH को मेंटेन करने के लिए, उसको बैलेंस रखने के लिए हमको बफरिंग एजेंट्स ऐड करने पड़ते हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड हो गया, ताकि उसकी pH जो है वो डिस्टर्ब ना हो। फोर्थ वन इज एंटी बैक्टीरियल एजेंट। एंटीबैक्टीरियल एजेंट नाम से इंडिकेट है कि उसके अंदर कोई भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो, उसको रोकने के लिए हमको प्रेपरेशन में एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स ऐड करने पड़ते हैं। अनदर वन इज चलेटिंग एजेंट। चलेटिंग एजेंट सच एज EDTA, that is ethylene diamine tetraacetic acid, and its salts, sodium or potassium salts of citric acid, are added in the formulation to chelate the metallic ion present in the formulation. They form a complex which gets dissolved in the solution. Sixth one is suspending, emulsing and wetting agent. The suspending agents which are used to improve the viscosity and to suspend the particles from the long time. Methyl cellulose, carboxymethyl cellulose, gelatin and acacia are commonly used as suspending agents. Emulsifying agents are used in sterile emulsion। कुछ प्रेपरेशन ऐसी रहती हैं जो सीधे किसी भी व्हीकल के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती हैं, तो उनको डिज़ोल्व करने के लिए हमको सस्पेंशंस बनाने पड़ते हैं, इमल्शंस बनाने पड़ते हैं। जो अगर सस्पेंशन बनाने की ज़रूरत हो तो उसके अंदर जो सस्पेंडिंग एजेंट हमको ऐड करने पड़ते हैं वो है मिथाइल सेलुलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, और इमल्सिफाइंग एजेंट्स हमको ऐड करने पड़ते हैं इमल्शंस प्रेपरेशन बनाने के लिए। दे आर आल्सो एक्ट एज एंटीफॉर्मिंग एजेंट्स टू subside the foam produced during shaking of the preparation. Thank you.